वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोमेड इजी। सो प्रीवियस क्लास की अगर हम बात करें बच्चों, तो हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर वी डिस्कस्ड इन previous classes. Okay, and in today's lecture we are going to start the next very important topic, that is the chromosomal disorders. Okay, chromosomal disorders. ठीक है, and these types of disorders cause due to non disjunction. ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था नॉन डिसजंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अब इस टॉपिक में सबसे पहले जो हम एक सिंड्रोम के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज द डाउन सिंड्रोम। ओके, डाउन syndrome. Okay, so Down syndrome, it was firstly reported by scientist Langdon Down in 1866. ठीक है, तो सबसे पहले जो ये डिस्कवर किया, या एक तरह से हम बोले तो सबसे पहले जिसने इस सिंड्रोम के बारे में स्टडी किया, सो दैट वाज द साइंटिस्ट लैंगडॉन डाउन। ओके, एंड द मेन कॉज ऑफ दिस सिंड्रोम, द मेन कॉज ऑफ द सिंड्रोम is it is the trisomy of 21st chromosome। ठीक है, यानी कि 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होने की वजह से ये जो डिसऑर्डर है यानी डाउन सिंड्रोम, ये कॉज होता है। सो सपोज दिस इज द पेयर ऑफ 21st chromosome and due to the trisomy. Okay, so this is the trisomy, means one extra chromosome is present here at the 21st chromosome. So due to this the Down syndrome is caused, and the symptoms of the syndrome are like mentally retarded. Okay, the person or the baby will be mentally retarded. Okay, and continuous salivation. Okay, continuous salivation and smaller digits. So these are some symptoms of this Down syndrome. Okay, so this is the whole about Down syndrome. So main आपको ये याद रखना है कि ये किसकी वजह से होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ठीक है, एंड सिम्टम्स आपको याद रखने हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पर सिंड्रोम है, दैट इज द Klinefelter syndrome. Okay, Klinefelter syndrome, and this Klinefelter syndrome, it is caused due to the variation in sex chromosome। ठीक है, ड्यू टू द वेरिएशन इन सेक्स क्रोमोसोम। ओके, सो दिस इज द मेन कॉज ऑफ द Klinefelter syndrome. So it is caused due to variation in sex chromosome. Okay, so suppose here this is the X and Y. Okay, and variation means one extra X chromosome is added here. ठीक है, so this is the genotype of this
पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिंड्रोम, ठीक है। ऐसे पर्सन जिनमें कि ये सिंड्रोम होता है, दैट इज द क्लेनफेल्टर सिंड्रोम. सो हियर द जीनोटाइप इज XX and Y. So these types of these persons basically they are okay. So these persons they are basically male, but they show some feminine characters. ठीक है. These persons are basically male, but they show some feminine characters. Like for example, they are having the female like voice, okay, and enlargement of breast, okay. So these are the some symptoms of this type of disorder or the syndrome, Klinefelter syndrome, okay. And the next important disorder is the Turner syndrome. Okay, so next syndrome is Turner's syndrome. Turner's syndrome. Okay, so such type of disorder, this is the genotype X and O. O means absent. Okay, if any chromosome is absent, that means this is the O. O means absent. Okay, so suppose here is an individual that is having the genotype X and X. Okay, and from here the formation of eggs takes place. Okay, so one X chromosome will be here and the next X chromosome will be at this egg, ठीक है. And this is the normal case, ठीक है. नॉर्मल केस में इस तरह से होगा, यानी कि यहाँ पर जो दो एग्स का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम जो है यहाँ पर इस एग में जाएगा और एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो इस एग में रह जाएगा. दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है. बट सपोज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, यहाँ पर हुआ क्या कि दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं, मींस X एंड X क्रोमोसोम्स, वो दोनों ही क्रोमोसोम्स एक ही एग में, ठीक है, एक ही एग में क्या हुए, वो इनहेरिट हुए. और सेकेंड जो एग होगा यहाँ पर कोई भी क्रोमोसोम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्रोमोसोम एक ही एग में ट्रांसफर हुए, ठीक है. एंड हियर सपोज दिस इज द स्पर्म, ओके, एंड कंटेनिंग Y क्रोमोसोम, ठीक है. यहां पर Y क्रोमोसोम है इस स्पर्म के पास, ओके. सो अब यहां पर नेक्स्ट जो जीनोटाइप बनेगा वो क्या बनेगा, नेक्स्ट यहां पर इससे जो जीनोटाइप फॉर्म होगा दैट इज द X एंड Y, ठीक है. ये तो जीनोटाइप बनेगा यहाँ पर X और Y. अगर यहाँ पर स्पर्म फर्टिलाइज करता है इस एग को, इस स्पर्म में क्रोमोसोम कौन सा है, Y क्रोमोसोम, ओके. एंड दिस Y क्रोमोसोम combines with this egg, ठीक है, and the genotype will be X and Y. Okay, so this is the case of what? This is the case of जो हमने previous discuss किया, that is the Klinefelter syndrome, ठीक है. ये Klinefelter syndrome में ही तो इस टाइप का जीनोटाइप बनता है यहाँ पर, okay. And here the next chromosome, this is the sperm containing X chromosome, okay, and this sperm fuses with this egg, okay. Now here what is the genotype is going to be, so here the X and O, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी क्रोमोसोम नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, X and O. So this is the genotype, and this genotype is for the Turner's syndrome. Okay, this is the Turner syndrome, ठीक है. And such persons they are the mentally retarded, okay. They have a low IQ level, okay, and continuous salivation also. So these types of symptoms are in the Turner's syndrome, okay.
एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सो सिम्टम्स भी यहां पर लिख लीजिए. सिम्टम्स, because one X chromosome is absent here, so menstruation, okay, menstruation disturbs, okay, and secondary sexual characters, secondary sexual characters also affected, ठीक है, in case of females, because one X chromosome is absent here, so that's why the menstrual cycle will be disturbed here, and secondary sexual characters, they will also be affected. Okay, so these are the some symptoms of the Turner syndrome. Okay, and next, okay, नेक्स्ट यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हमने सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया. ओके, एंड नेक्स्ट जो यहाँ पर आएगा, दैट इज द सम एडिशनल पॉइंट्स आर हियर. सो दीज आर द, इफ एनी जीन इज प्रेजेंट ऑन Y क्रोमोसोम, ओके, इफ एक पॉइंट आप उसमें ऐड करेंगे, जिसमें कि क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में आपको बताया था मैंने कि जो एक्स एंड वाई जो जीनोटाइप है, ठीक है, एंड द पर्सन इज बेसिकली मेल बट इट शोज सम फेमिनाइन कैरेक्टर्स आल्सो. ओके, एंड सच टाइप ऑफ कंडीशन और सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड एज गायनेकोमैस्टिया. ओके, तो यहां पर जो है आप ये जो टर्म है गायनेकोमैस्टिया. ओके, सो गायनेकोमैस्टिया क्या है यहाँ पर? मेल शोज सम फेमिनाइन कैरेक्टर्स, सो सच टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज गायनेकोमैस्टिया. ओके, सो ये पॉइंट जो है आप वहां पर ऐड करेंगे. ओके, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में ही आपको लिखना है गायनेकोमैस्टिया. ओके, नाउ इफ any gene is present on Y chromosome, okay, if any gene is present on Y chromosome, then such types of genes called as, such type of genes are called as होलैंड्रिक जीन्स. ठीक है, such type of genes are called as होलैंड्रिक genes. ओके, एंड नेक्स्ट ये एडिशनल कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आपको लिखना है. ओके, इफ एनी जीन इज प्रेजेंट ऑन Y chromosome, then such types of genes are called as Hollandric genes, and these genes or the characters, okay, or the chromosomes, because they are present on Y chromosome, that's why they inherit from father, only from the father to the son. ठीक है, फादर से सन में ही ट्रांसफर होते हैं. So such genes are called as Hollandric genes. For example, here the hypertrichosis. ठीक है, hypertrichosis. Now, what is hypertrichosis? Hypertrichosis means presence of hairs on external ear or ear pinna. Okay, so presence of hairs on ear pinna. ठीक है, so ये जो है इस टाइप का जो एक कैरेक्टर है, ये मोस्टली मेल के केस में ही इस तरह का जो है ये कैरेक्टर हम ऑब्जर्व करते हैं.
Okay, so this is the hypertrichosis, and the gene which is responsible for such type of character, that is present only on the Y chromosome. Okay, so this is the additional point. And next यहाँ पर आप लिखेंगे सेक्स इन्फ्लुएंस्ड characters. Okay, sex influenced characters. So there are some characters present on they are present on autosomes. But their expression is controlled by the sex chromosome. Okay, means there are some characters, those are present on autosomes, but their expression is controlled by sex chromosome. ठीक है, so such types of characters are called as what? Sex influenced characters. ठीक है, now here we can take one important example, that is the baldness. Okay, baldness. So the gene for the baldness, it is, if it is present in dominant form, okay, and if second condition is if in recessive form. Okay, so if it is present in dominant form, and dominant form due to the presence of testosterone, and recessive form due to the hormone, okay, due to the hormone estrogen in case of female. ठीक है, so in case of male and this is the case of female. ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इस तरह से आप इसे लिखेंगे. ठीक है, तो यहां पर आप जो है दैट इज अ बॉल्डनेस. हमने यहां पर बॉल्डनेस का एग्जांपल लिया, एंड बॉल्डनेस, द जीन फॉर बॉल्डनेस इफ इट इज प्रेजेंट इन डोमिनेंट फॉर्म, and this gene is present in dominant form because of the presence of male sex hormone, that is the testosterone. ठीक है, and the next baldness, the gene for baldness is if it is present in recessive form, so that is because of the estrogen in case of female. ठीक है, so that is the reason that this means this disease, or not the disease, this type of means trait is only seen in case of male. ठीक है, तो ये जो बॉल्डनेस है, तो ये बॉल्डनेस हम बेसिकली यहाँ पर मेल के केस में ही हम ज्यादा मोस्टली यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, इसको हम बॉल्डनेस को बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, क्योंकि मेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, यहाँ पर इस जीन को डोमिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेशन कराता है. तो इसीलिए मेल के केस में यहाँ पर जो है बॉल्डनेस जो है ये हम मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं. और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में यहाँ पर जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जो कि इस जीन को रेसेसिव फॉर्म में रखता है. ठीक है, और इसको रेसेसिव फॉर्म में रखने की वजह से क्या होता है कि ये जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता है. तो इसलिए फीमेल में जो बॉल्डनेस है ये हम ऑब्जर्व नहीं करते, ये हमें देखने को नहीं मिलता है. बट एट सर्टेन एज, ठीक है, एक पर्टिकुलर एज है, मेनली एट द मेनोपॉज. ठीक है, तो मेनोपॉज तक तो हम इसे ऑब्जर्व नहीं करते हैं, यानी कि फीमेल में इस तरह का जो बॉल्डनेस है ये हमें नहीं दिखता है.
मेनोपॉज से पहले, ठीक है। बट क्योंकि मेनोपॉज हो चुका है, और मेनोपॉज यानी कि 45 ईयर्स, आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स व्हेन द मेनोपॉज कम्स, देन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन दैट डिक्रीजेस, ठीक है। एस्ट्रोजन का जो लेवल होगा अब वहां पर क्या होगा, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा मेनोपॉज की वजह से, और टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो दैट विल बी इंक्रीज, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उस टाइम पीरियड में जो है ये बॉल्डनेस मीन्स हेयर फॉल कह सकते हैं, बॉल्डनेस तो नहीं कहेंगे लेकिन उसे हम हेयर फॉल बोल सकते हैं। तो हेयर फॉल जो है वो हमें ऑब्जर्व होने लगता है, वो दिखाई देने लगता है फीमेल में आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड द हायर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। सो दैट इज द रीजन। बट फीमेल में कभी भी बॉल्डनेस जैसी सिचुएशन नहीं आती, ठीक है। सो दिस इज द दिस वाज टुडेज लेक्चर, ठीक है। और इस पूरे लेक्चर में जो भी आपको टॉपिक डिस्कस किए हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन सारे टॉपिक से, ठीक है। तो ये आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, और कहीं पर भी अगर कोई भी डाउट आता है आपको तो आप कमेंट करके और अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वीडियो जो है आप उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो भी कर लें, ओके। और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से आप पढ़ें, ठीक है। होप सो बहुत जल्दी ही आपका जो स्कूल है वो ओपन होगा, ठीक है। और तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहें, क्योंकि आपका सिलेबस भी जो है एक रिदम से चल रहा है, ठीक है। और सिलेबस भी जल्दी ही कंप्लीट होगा, और जैसे ही आपका स्कूल ओपन होता है, ठीक है, तब तो और भी अच्छी बात है, लाइव जो है वहां पर क्लासेस होंगी और इस तरह से ये सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको डाउट होता है, कहीं से भी कोई भी डाउट आता है, तो आप प्लीज एक कमेंट करके और जरूर से अपना जो डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो वहां पर वो क्लियर कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।